Hello friends, today we have discussed about the foreign invaders in India during the period of beginning to 1206 AD. Let's start it. Sakas, the decline of the Greek kingdoms of the northwest coincided with an attack on Bactria itself, nomadic tribes, Central Asia की कुछ nomadic tribes थी जो इंडिया में आई उनको उनको द सिस्थियंस बोला जाता था और इंडियन सोर्सेज के अकॉर्डिंग उनको साकास बोला जाता था एंड जो साकास का जो बोला जाता था फर्स्ट किंग ऑफ साका इंडिया वाज मॉज एंड मोगा हु एस्टैब्लिश साका पावर इन गांधारा द गांधार हमने ऑलरेडी महाजनपदा पढ़ा था तो गांधार जो था वो नियर बाय टू ये मथुरा आसपास का जो इंडियन रीजन है वो था एंड ही सक्सेसर अजीत सक्सेसफुली अटैक द लास्ट ऑफ द ग्रीक किंग्स इन नॉर्दर्न इंडिया the Hippostratus and the later king, the Gondophanes, achieved the fame through the association of his name with the saint of Saint Thomas. It being held by tradition, Saint Thomas traveled from the Israel to the court of the Gondophon. जो Saint Thomas थे वो इजराइल से इंडिया उसके कोर्ट में आए थे. The coming of Kushanas had pushed the Sakas south into the region of Kutch and the Malwa in western India. Here they dramatically burst into the Indian political scenes in the mid second century, and the Rudraman. And with the weakening of Kushana power after the death of Kanishka, the Saka once more asserted themselves. The Rudraman came from the region of Kutch and at Junagadh a lengthy inscription प्रोवाइड एविडेंस ऑफ हिज डीड्स मतलब वहाँ पे एविडेंस है मतलब इंस्क्रिप्शंस हैं जूनागढ़ में आपको मिलेंगे इनसे रिलेटेड एंड द इंस्क्रिप्शन डेटेड in AD 150 record the repairing of the Mauryan dams refers to elogistic terms to Rudraman conquest in the Namda Valley, his campaign against the Satvana king and his victory over the Yayudhya tribes in Rajasthan. And after the death of Rudraman, the Sakas lapsed into political quiet until the closing years of the 4th centuries AD. An era started 78 AD has come to be called Saka era. जो भी हम अभी हमारा जो इंडियन कैलेंडर सिस्टम है आप उसमें लिखा होता है सक संबंध साका तो वो यहीं से इंट्रोड्यूस माना जाता है. अब बात करते हैं कुशानाज की. तो कुशाना हैड ओरिजिनली बिलोंग टू द रीजन ऑफ वेस्टर्न चाइना. They are also known as the Uchazis, and the Kushanas defeated the Sakas, and the Pahalwas and the Prathians went on to create a big empire in Afghanistan, Pakistan, and northern parts of India. The first important ruler of Kushana dynasty was Kuzula, and he occupied the valley of Kabul, had also issued coin in his name. He was then succeeded by his son, Vima. He had conquered the areas of northern India till Mathura. He had issued coin proclaiming himself as a Shiva devotee, as the ruler of whole world. इनके टाइम पे बहुत सारे और कॉइन्स इंट्रोड्यूस किए गए थे जिनमें मतलब त्रिशूलधारी त्रिशूल एंड द लॉर्ड शिवा प्रोटेक्टर ऑफ नंदी इस तरीके की पिक्चर्स मतलब उनके ऊपर इंस्क्राइब हुई रहती थी वो मतलब मिली थी उनके टाइम पे. तो इस तरीके के ये मतलब शिवा डिपोटी थे. And thereafter Kushana Empire was ruled by Kanishka. He considered the most important ruler of the Kushana dynasty. And the Kanishka usurped the throne of in 78 AD and then started a new era. What is known as to us as the Saka era, a calendar system used by the Indian government. तो इनको भी माना जाता है कि इन्होंने उसको फिर से रिनोन किया मतलब स्टार्ट जो है मतलब कनिष्का ने कराया था. But under the rule of Kanishka, Kushana Empire reached his maximum territorial limits. The empire extended from Central Asia to northern India, but including Kaushambi, Varanasi, and Sravasti in Uttar Pradesh region. His capital was Purusapura, is in modern Peshawar, and the second was Mathura, UP. Political significance of Kanishka rule is largely due to the achievements in the form he integrated Central Asia with northern India under a single empire, single umbrella. And they allowed to intermingling of different distinct culture, also increase the inter-religion trading activities. इनके टाइम पे रोमन एम्पायर्स थे रोमन्स जो थे उनके थ्रू ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ बहुत इंक्रीज हुई और कुछ अर्बन सिस्टम सेटअप हुए क्योंकि जब बाहर से मतलब फॉरेनर्स जो ट्रेडिंग के लिए आया करते थे तो उनके लिए सोसाइटी मतलब जो हमारा मतलब जो अर्बन सिस्टम जो सेटअप हुआ वो इन्हीं के टाइम से मतलब कुशानाज के टाइम से माना जाता है.
क्योंकि वरना मतलब मोस्टली हमारा जो है था रूरल सिस्टम था। जो अर्बन सेटअप हुआ वो इन्हीं के टाइम से, जो बाहर से फॉरेनर्स आए उन्होंने मतलब नई नई चीज़ें इंट्रोड्यूस की, और मतलब थोड़ा डेवलपमेंट भी बहुत ज़्यादा हुआ इनके टाइम पे, और कल्चरल डेवलपमेंट बहुत ही ज़्यादा माना जाता है कनिष्क के टाइम पे। तो और कुछ चीज़ें फिर ये भी मतलब फेमस हिस्ट्री, एंड द कनिष्का रिमेन्स फेमस इन हिस्ट्री एज द ग्रेट पैटर्न ऑफ बुद्धिज्म। इनको बुद्धिज्म का गैट मतलब बहुत ही ज़्यादा इनके टाइम पे फ्लरिश्ड हुआ बुद्धिज्म जो था। ही इज क्रेडिटेड टू कन्विंग द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल एट कुंडलावन एंड लोकेटेड एट प्रेजेंट डे ऑफ हरवान नियर श्रीनगर। Fourth Buddhist Council was a large number of Buddhist scholars took part, and the council is important in the history of Buddhism for the developments. In the council, Buddhism got split in two different schools, हिनायना एंड द महायाना। अभी तक हमने बस एक ही पढ़ा था कि जो मौर्यन डायनेस्टी या गुप्ता डायनेस्टी में जो बुद्धिज्म होता था महायाना हुआ करता था। एंड अबाउट 500 monks had attended the council, and this council had prepared an authoritative commentary on the त्रिपिटकास एंड द महायाना डॉक्ट्राइन वाज गिवन फाइनल से। इसी के टाइम पे जो डॉक्ट्राइंस होते हैं इनका, जो मतलब बुक्स होती हैं, स्क्रिप्चर्स होते हैं, जो उनको फाइनल शेप दिया गया था। कनिष्का इज ऑल्सो नोन एज टू पैट्रोनाइज द गंधार एंड मथुरा स्कूल ऑफ स्क्रिप्चर आर्ट। ये मिलेंगे आपको यूपी में है, जो मथुरा है वहाँ पे म्यूजियम्स हैं, जो इंडियन मतलब नेशनल म्यूजियम आर्ट गैलरीज हैं, वहाँ पे ये मतलब स्क्रिप्चर अभी भी प्रेजेंटली रखे हुए हैं जो मिले हैं वहाँ पे। ही ऑल्सो बिल्ट ए जाइंट स्तूपा to the house the Buddha relics and his capital city of Puruswara located at present day पेशावर। जितना भी जो इनके टाइम का थोड़ा जो डेवलपमेंट हुआ था आर्किटेक्चर में, वो भी नाउ इन पाकिस्तान रीजन में है। And that building was intact to magnificence when Chinese pilgrim Fan had visited that area when he arrived in the early 5th century AD. And Kanishka also had sent missionaries to the Central Asian China to propagate the new faith of Buddhism. इनके टाइम पे जो मिशनरीज भेजे जाते थे, मतलब एक ग्रुप ऑफ पीपल्स, मतलब जो प्रमोशन के लिए रिलीजन, मतलब जो रिलीजन्स को प्रमोट करते थे। एंड बुद्धिस्ट चैत्यास बिहाराज ऑल्सो बिल्ट इन डिफरेंट प्लेसेस। ही ऑल्सो पैट्रोनाइज्ड टू द बुद्धिस्ट स्कॉलर्स वसुमित्रा, अश्वघोषा, नागार्जुना। He should be noted that Ashwaghosa was a great philosopher, poet, and the dramatist of his time. He was also the author of the Buddha Charita. And while Nagarjuna came from South India, he adorned the court of Kanishka, and the Kanishka also patronized the famous physician of ancient India, Charka. तो ये सब इनके टाइम पे बहुत फेमस जो चीज़ें इंट्रोड्यूस हुई थी वो, जैसे कि मतलब बुद्ध चरिता इंट्रोड्यूस की, चरक संहिता जो चरक ने मतलब लिखी थी, इज अ फेमस, इनको वो फाउंडर ऑफ मेडिकल हिस्ट्री माना जाता है, जो ये इसका सर्जरी के लिए जो चीज़ें इन्होंने की हैं चरक को। अब इसके बाद इन्होंने और भी बहुत चीज़ें की, कॉइन्स वगैरह, सिल्वर एंड गोल्ड कॉइन वगैरह इंट्रोड्यूस किए। And the contribution of Kushana. The Kushans occupy special place in ancient history because of their contribution to various aspects of life, and their vast empire help in growth of internal external trade introduce हुआ, जो हमने पढ़ा कि रोमन्स आए थे, बहुत सारे जो फॉरेनर्स ट्रेडिंग के लिए आया करते थे। It is resulted in the rise of new urban centers. And the rich state of economy under the Kushana is also evidence of large number of gold and copper coins that they struck. Even in literature, medicine, India made progress. Charaka, known as father of Ayurveda, wrote a book on medicine called Charak Samhita. Whereas Ghosha has a Buddhist scholars wrote Buddha Charitra and full length of biography of Buddha. And both these scholars were believed to be the contemporaries of King Kanishka. And the Kushanas patronized the Gandhar and Mathura schools of sculpture art, which are known at producing the earliest images of Buddha and Buddhist coins मिले हैं, उनके sculptures हैं, वो सब मथुरा आर्ट गैलरी में रखे हुए हैं। And the successor of Kanishka and the end of Kushana rule. The successor of Kanishka had ruled for another 150 years माना जाता है। और जो इनका एम्पायर था, इम्पॉर्टेंट सिटी थी उनके टाइम पे, मथुरा बिकेम एन इम्पॉर्टेंट सिटी। एंड और कनिष्का मतलब जो लाइक हिज फादर कनिष्का, ही ऑल्सो ए पैटर्न ऑफ द बुद्धिज्म रिलीजन माना जाता है इनको। और कहते हैं जो कुशाना एम्पायर था ग्रेजुअली मतलब डिक्लाइन हो गया, अर्ली 3rd century AD में इनका माना जाता है। और इन लोगों को शिवा का वर्शिपर माना जाता था। अभी मतलब ये लास्ट ट्राइब है हमारी, मतलब जो मतलब फॉरेन इन्वेजन जो
फॉरेन मतलब ट्राइबल्स इंडिया में आए थे उनमें से। तो ये सबसे बहुत ही ज़्यादा मतलब बार्बरिक नेचर की ट्राइब थी हुनास। इन वो सेंट्रल एशिया से आए थे लोग, और ये एंटर्ड किए थे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर। जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर वाला पार्ट है वो इंडिया मतलब जो अफगानिस्तान, बलूचिस्तान और जो पाकिस्तान की साइड का जो पार्ट है उसको नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर बोला जाता है। एंड दे वर ऑल्सो नो कॉल्ड दैत्याज भी बोला जाता था इनको, मतलब इनके नेचर की वजह से। एंड फर्स्ट दे इन्वेडेड इंडिया ड्यूरिंग द स्कंद गुप्ता इन अराउंड 450 AD एंड वर डिफीटेड। स्कंद गुप्ता के टाइम पे ये आए थे पर ये हार गए थे। एंड आफ्टर सम टाइम द रूलर तोरमाना डिस्ट्रॉयड द गुप्ता एम्पायर एंड गेन द टाइटल ऑफ महाराज बाय गेनिंग कंट्रोल ऑफ पंजाब, राजपुताना, मालवा एंड सिंध। फिर इसके बाद जब मिहिर कुलव was the son of Tormana, began 510 AD, Sialkot was his capital. He hated the Buddhist bhikshus and destroyed monasteries and stupas, and he defeated by Malwa king Yashodharman. After his defeat, he went to Kashmir and set up his empire there. After the invasion of the Hunas, Gupta Empire came to an end, and the political unity of India is ended. एंड द कंट्री वॉज अगेन डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट्स और किंगडम्स। क्योंकि जैसे ही फॉरेन इन्वेजन स्टार्ट हुआ इंडिया में, तो जो इंडियन एम्पायर से धीरे धीरे मतलब उनका जो वीकन सिस्टम था वो वीकन होने लगा, और जो मतलब एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था वो उतना स्ट्रांग नहीं रहा, मतलब पॉलिसीज मतलब तो उसकी वजह से जो इंडिया था वो डिसइंटीग्रेटेड हो गया, और फिर से अगेन से वो छोटे छोटे किंगडम्स में डिवाइड हो गया। तो जो इसका जो एसिमुलेशन है कि माना जाता है जितनी भी तीनों ट्राइब्स इंडिया में आई उनमें से जो कनिष्क था वही एज अ मतलब अच्छा मतलब उसको माना जाता है एज ए फॉर इंडिया। बाकी जो दो अदर ट्राइब्स थी उन्होंने मतलब इंडिया को मतलब हार्म ही किया, मतलब इफेक्ट मतलब किया है। और इसका मेन रीज़न माना जाता है कि क्यों जो फॉरेन मतलब जो इन्वेडर्स इंडिया में आए, तो उसका एक रीज़न ये है भी है कि जो इंडियंस की लिबरलिस्ट पॉलिसी, जो इंडियंस का लिबरलिस्ट व्यूज़ थे, उनकी वजह से फॉरेनर्स इंडिया को कंट्रोल कर पाए, इन्वेड किए। तो इस मतलब ये हमारे चैप्टर का लास्ट पार्ट था। और इस चैप्टर से रिलेटेड आपके एग्जाम में बस लास्ट 2 ईयर से ही क्वेश्चंस आए हैं, और एक क्वेश्चन आता है आपका 1 मार्क का, मतलब जो कि आपके महाजनपदा वाले मतलब उससे आता है कि 1 मार्क में, जैसे कि आपका 2018 में क्वेश्चन आया है राइट द नेम्स ऑफ एनी 2 महाजनपदास। तो इसमें आपको बस सीधा नाम लिखने हैं। फिर उसी टाइम पे आपको एक 4 मार्क का क्वेश्चन आया था व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द धमा यात्रा एंड द धमा मत्रा। आपको उनमें दोनों टर्म्स को डिफाइन करना है। अशोका के टाइम पे जो धमा यात्रा एंड धमा मत्रा था, उन दोनों को अलग अलग चीज़ें मतलब करनी है। उस मतलब 4 मार्क्स का क्वेश्चन है जिसमें आपको वर्ड लिमिट 100 है। फिर 2019 में आपसे पूछा गया था वाई द इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका इज इम्पोर्टेंस फॉर अस। तो उसकी इम्पोर्टेंस पूछी थी। रुमेनेदाय एक इंस्क्रिप्शन है कि उसकी इम्पोर्टेंस क्यों है हमारे लिए। और फिर एक क्वेश्चन पूछा गया था आपका 4 मार्क्स में, इवेल्युएट द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द मौर्यन पीरियड। तो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन को आपको इवेल्युएट करना था, मतलब कि क्या उनकी मतलब सिस्टम था, कैसे मतलब 4 पार्ट्स में डिवाइड किया था, उसको बस आपको लिखना है। और 100 वर्ड्स लिमिट है, तो मतलब ट्राई कीजिए जितना अच्छे से आप अपना आंसर फ्रेम करेंगे मार्क्स उतने ज़्यादा मिलेंगे। और सोशल साइंस जो है बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट माना जाता है। थैंक यू।